Hello students, in previous video we have revised lesson number 5 and now today we will start the revision of lesson number 6, that is spoilage and wastage of food and food preservation. So in this lesson we have learned about how to preserve the food and avoid the spoilage of food. So first of all, we will revise the spoilage of food. So these are some observations that people often do after shopping of groceries. That is, how can we store the different food items that we purchased in shopping. That is, fruits and vegetables are usually placed in refrigerators lower shelf, and milk is boiled before storing. Biscuits, chips, pulses, uncooked rice, and so on are stored in jars and boxes at room temperature. And very important, turmeric powder or certain properly packed insect repellent tablets are placed in pulses rice so that insects do not spoil them. So that means turmeric powder are natural insect repellent, and raw chicken, fish, and other non-vegetarian items are cooked immediately or kept frozen till they are required. That means उनको हम कहाँ रखते हैं? फ्रीजर्स में रखते हैं, and जो हमारे fruits, vegetables होते हैं उन्हें हम lower shelf में रखते हैं. Onions and potatoes are stored in kitchen in tray or shelves at room temperature. Sugar and salt are placed in containers and stored at room temperature. Curd is prepared at room temperature, but as soon as it sets, it is placed in refrigerator. Because you know that अगर हम refrigerator में नहीं रखते हैं, then it will become sour. So such activities are carried out in order to preserve food so that it does not get spoiled. So ये सारी activities क्यों करते हैं हम? Different ways से हम store क्यों करते हैं? So that the food items will not get spoiled. कि वो spoil ना हो जाए. So some of the above mentioned items like milk, fish, curd, eggs and fruits are left on the kitchen shelves for a few days. Their appearance, smell and taste changes. So there are some food items जिनको अगर हम kitchen shelf पे थोड़ी देर तक रख देते हैं तो what will happen? उसमें से smell आ जाती है, taste change हो जाता है, appearance change हो जाती है, and curd becomes sour and milk curdles. So you know, अगर हम कर्ड को बाहर ही रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, ओपन किचन शेल्फ पे रख देंगे, देन व्हाट विल हैपन? इट बिकम सोर, खट्टी हो जाएगी. एंड मिल्क को अगर हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, ओपन ही शेल्फ पे रख देंगे, व्हाट विल हैपन? वो मिल्क कर्डल्स मीन्स फट जाएगा. And similarly, fruits get covered with whitish and orange powdery substance. Some also start emitting foul smell. And all these signs indicate these food items are no longer fit for eating and are spoiled. So अगर हम properly food items को store नहीं करते, then what will happen? वो खाने लायक नहीं बचेंगे, उसमें से स्मेल आ जाएगी, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और ये सारी चीजें क्या शो करती है? दैट it gets spoiled and it is no longer fit for eating. So that is the spoilage of food. Now what are its causes? क्या reason है? What are the reason behind the spoilage of food? कि food spoil क्यों होता है? So there are 3 main causes. That is also in the textbook question, what are the 3 main causes of spoilage of food? So 3 causes are microorganisms, enzymes
and insects, worms and rats. So read it carefully, that how microorganisms, enzymes, insects, worms and rats spoil the food. So what are microorganisms? Micro means very small, so very small organisms like bacteria and fungi are the main causes of spoilage of food. So ये जो microorganisms हैं ये सबसे main cause है food spoil करने की. And these organisms tend to grow fast in the presence of moisture and warmth. This is again a very important line कि the microorganisms grow very fast in the presence of moisture and warmth. ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं किसे? मॉइस्चर, जहां पर नमी होती है, एंड गर्मी ज्यादा होती है. सो ऐसी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. सो हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको बचा सकते हैं? सो इसके मेन कॉजेज हैं मॉइस्चर एंड वार्मथ. सो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड, दैट इज ड्राई इट. These are the how to prevent food from getting spoiled from microorganisms. So first of all, remove the moisture, because moisture में ये grow करते हैं fast. So what we have to do, हम इसका पहले moisture remove करेंगे, right? And second thing, ये कहाँ grow करते हैं? warm places पे, जहाँ पर की heat ज़्यादा होगी और गर्मी ज़्यादा होगी. सो मॉइस्चर रिमूव कर देंगे, ड्राई कर देंगे, तो इसके कम हो जाएंगे चांसेस स्पॉइल होने के. सेकेंडली, वे कीप द फूड एट लो टेम्परेचर. जब वार्मथ ज़्यादा होने से उनकी फास्ट ग्रो हो जाती है, तो कम करेंगे अगर हम टेम्परेचर, तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी. और वो कैसे करेंगे? बाय कीप द थिंग्स इन द रेफ्रिजरेटर. लो टेम्परेचर कैसे करेंगे? रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होता है, तो रेफ्रिजरेटर में अगर हम रखते हैं, सो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया. जो फंगाई एंड बैक्टीरिया है, इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी बिकॉज टेम्परेचर कम हो गया है. और ये ग्रो फास्ट करते हैं. मॉइस्चर एंड वार्मथ पे इसका ऑपोजिट कर देंगे हम, मॉइस्चर कम कर देंगे, दैट इज ड्राई करेंगे तो उसके. एंड सेकेंडली वार्मथ कम कर देंगे, उसको लो टेम्परेचर में रखेंगे, तो ये जो हमारा फूड है वो जल्दी स्पॉइल नहीं होगा. कीप द फूड एट लो टेम्परेचर. सेकेंड इज योर एंजाइम्स. So there are three main causes, microorganisms, that we have revised. Second is your enzymes. So what are enzymes? Enzymes chemicals होते हैं जो fruit और vegetables के अंदर present होते हैं, right? So enzymes कोई बाहर से कोई चीज नहीं होती है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. और ये हार्मफुल तो नहीं होंगे. दीज आर यूजफुल थिंग्स, बट इट बिकम्स हार्मफुल लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर यूजफुल बिकॉज दे कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट. अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे जो फ्रूट्स हैं वो नहीं पकेंगे, राइपन नहीं होंगे. राइपन मीन्स पकते नहीं है. जैसे मैंगो है, वो कच्चे होते हैं, बट वो आफ्टर सम टाइम्स वो पक जाते हैं. तो क्यों पकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स ही है वो केमिकल्स जो उनको पकाते हैं, उनको स्वीट बनाते हैं, उनको खाने लायक बनाते हैं. सो एंजाइम्स आर वेरी यूजफुल. बट हाउ इट कैन स्पॉइल द फूड? When they ripen, they change their color and become sweet. That we know. So that is why they are enzymes are useful. But however, they are how they are harmful. They contribute to the spoiling of food products. How? क्योंकि जो ये हैं, ये अपनी केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल चेंजेस जो हैं, वो क्या होता है, कंटिन्यू रखते हैं आफ्टर राइपनिंग.
जब राइपन हो जाता है, पक जाता है फूड, फिर भी ये अपना वर्क करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब फ्रूट आपका राइपन हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपना वर्क करना छोड़ दिया। नो, एंजाइम्स हैं वो अपना वर्क करते ही रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो फ्रूट राइपन हो जाता है, पक जाता है, उसके बाद भी अगर वो वर्क करेंगे तो व्हाट विल हैपन, एट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फ्लेवर, कलर एंड अपीयरेंस। तो जब ज़्यादा पक जाता है फूड, क्या हो जाता है, वो बिल्कुल नरम हो जाता है। उसमें से कई बार क्या होता है, फ्लेवर भी, टेस्ट चेंज हो जाता है, स्वीट के बजाय कोई अलग सा ही टेस्ट जाता है। कई बार स्मेल भी आ जाती है, देखने में भी खराब हो जाता है। सो दिस कॉज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। सो एंजाइम्स आर यूजफुल, बट जब वो राइपन हो जाता है उसके बाद वो उसको स्पॉयल भी कर देता है, बिकॉज वो जो उसके केमिकल्स होते हैं, इट कंटिन्यू ऑज वर्किंग, तो उसको वर्क करते रहते हैं और उसको खराब कर देते हैं। एंड थर्ड is your insect worms and rats. So you know that how insects, worms and rats spoil the food. वो आपने कॉकरोचेस एंड रैट्स, ये सारी चीज़ें देखे होंगे। ये सारी चीज़ें कैसे हमारे फूड को स्पॉइल कर सकती हैं। ये घर में रहते हैं, उनको खाने शुरू कर देते हैं, और ये कैसी जगह पर प्रेफर करते हैं, ये कॉकरोचेस, रैट्स एंड वॉर्म्स, ये कहाँ पर होते हैं, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस पे, वेयर फूड आइटम्स आर अवेलेबल। वो कहाँ बनाते हैं अपने होम्स, दे मेक दियर होम्स इन places that are moist, dark and where food items are available. So that means moist, जहाँ moisture जो हमने ऊपर भी किया है, moisture में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। सिमिलरली इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स भी ऐसी जगह पर अपने होम्स बनाते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि हमें जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना है, और तो उससे और क्लीन रखना है। सो हाउ कैन वी अवॉइड देम, और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, टू कीप द कबर्ड, शेल्फ्स एंड कंटेनर क्लीन एंड ड्राई। तो जैसे मैंने बताया है कि ड्राई रखना पड़ेगा, बिकॉज ये मॉइस्ट जगह पे अपना होम्स बनाते हैं। सो हम मॉइस्चर रिमूव करेंगे, दैट मीन्स उनको ड्राई करेंगे, और जो हमारे कबर्ड्स है जहाँ पर कि हम फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं, और शेल्फ्स हैं, उनको हम कैसे रखेंगे, ड्राई एंड क्लीन, साफ सुथरा, जिससे कि ये अपने वहां पर घर ना बना सके। सो दीज आर द थ्री causes that lead to spoilage of food. So learn them and revise them, and in next video we will uh, revise the prevention of spoilage of food and the remaining part of this lesson. Thank you.